So I will say thank you to the whole EcoJob team for helping me throughout my journey and for getting placed me in one of the product-based company. So always be thankful of them. So बेसिकली मेरी जब 2024 की प्लेसमेंट चल रही थी ना, तो उस वक्त कंपनी ने आ रही थी, तो अक्टूबर आई थिंक अक्टूबर में मैंने EcoJob का नाम सुना, तो मैंने दिसंबर में जाके वो इंटरव्यू दिया था, वो जो पे आफ्टर प्लेसमेंट का होता है ना, तो उसका इंटरव्यू दिया, तो उसके बाद मैंने ज्वाइन कर लिया दिसंबर की बैच से किया। तो कई सारे नाम आए कि जॉब और आई थिंक दो तीन कंपनी थे तो कि जॉब का रिव्यू सबसे अच्छा लगा, तो इसलिए। So hi guys, welcome back to our YouTube channel. My name is Utkarsh. So today we have Vaibhav with us, and today only he got placed at Capture as a SDE position in Bangalore location. And abhi he don't have any idea कि he is selected or not. So I have called him कि we have a HR round. So let's give this good news to Vaibhav and see his reaction. I am from EcoJob team also, right? I am from founders of his team, and I think you have given 3-4 rounds for Capture, right? Yes sir, 2 rounds. 2 rounds. Okay. Okay. So I have something for you. Okay sir, I got less. Okay. Thank you. Yes. So basically, I am not from the Capture team, right? Okay. I am from EcoJob team only, right? We want to capture your emotions, ki like how you are feeling right now. Right. Really, thank you sir. So did you have any idea that this is going to happen? No sir, really not, because EcoJob placement team has till it is not confirmed till now. That's why I am confused about Got it. अब कैसा लग रहा है? आप एकदम बढ़िया। Relax हो जाओ, कोई बात नहीं। हाँ, वो तो है। ठीक है, got it. You have the details of the company? Yes sir. Got it. So basically, we want to capture the movements of the student, right? Because this is very important कि भाई इतनी मेहनत करी है जो 6-7 months, right? So we want to capture it, show to the other students also कि भाई this is the feeling which you are preparing for, right? है ना? तो एक मोमेंट बहुत स्पेशल होता है, right? So that's why I asked the placement team to like add me in this meeting. I will tell Vaibhav ki this is going to happen, right? That is the main thing. So you are from full stack course, right? Yes sir, full stack course, Java full stack. Got it. बताओ थोड़ा यार, मतलब कैसा लग रहा है, क्या फीलिंग आ रही है, मतलब क्या लग रहा था होगा कि नहीं होगा, अब क्या लग रहा है? रियली मतलब अब तो अच्छा ही लग रहा है कि हो गया अब तो क्या। So like I want to know your story. When did you join EcoJob? How did you know about EcoJob and all things, right? So to know ki how things work, right, on your that side also, right? What the student thinks when they join EcoJob, and now you finally got placed to a dream company, right? Yes. Because the package is also very good as far as I have the information, and I also know they are also giving you the ESOPs, right? So it's great to see that कि starting your career you are getting a ESOP of a company. It gives you the emotion कि like you are a stakeholder of that company, right? है ना? सैलरी के अलावा जब ESOPs आते हैं तो it's और काम करने में मजा आता है। Got it. So when did you join EcoJob? So basically मेरी जब 2024 की प्लेसमेंट चल रही थी ना, तो कंपनी ने आ रही थी, तो अक्टूबर आई थिंक अक्टूबर में मैंने EcoJob का नाम सुना, तो और मैंने दिसंबर में जाके वो इंटरव्यू दिया था, वो जो पे आफ्टर प्लेसमेंट का होता है ना, तो उसका इंटरव्यू दिया, तो उसके बाद मैंने ज्वाइन कर लिया दिसंबर की बैच से। एजुकेशन में क्या किया है आपने? मैंने बीटेक कंप्यूटर इंजीनियर। बीटेक कंप्यूटर साइंस, गॉट इट। तो बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड 2024 ग्रेजुएट, राइट? यस सर, 2024। तो कॉलेज में प्लेसमेंट का क्या सीन था, मतलब कॉलेज से नहीं हुआ था प्लेसमेंट? मतलब हाँ, कॉलेज से हुआ था ना, रियल सॉफ्टवेयर में जो मैं प्लेस हुआ था ना, उसमें ही हुआ था। अच्छा, अच्छी कंपनी थी, उसमें कोई इशू नहीं था, लेकिन ऐसे फ्यूचर स्कोप की वजह से और वो थोड़े इशू थे, इसलिए फ्यूचर के बारे में भी सोचना पड़ेगा ना। वो टेक स्टैक में जो मैं काम कर रहा था ना, वो .NET थी, तो मुझे ऐसा उसमें इशू ज्यादा आ रहे थे। और स्प्रिंग बूट में मैं कॉलेज में भी उसके बारे में पढ़ा, और EcoJob में भी ज्यादा प्रोजेक्ट्स उसी में बनाए, तो इसलिए कैप्चर। So why, like आपके पास जॉब थी, राइट? You were already working in a technical field. So what made you join EcoJob? पहली बात तो जब मैंने ज्वाइन किया था तब मेरे पास जॉब नहीं थी। मतलब जब दिसंबर में मैंने आई थिंक दिसंबर में स्टार्टिंग में मेरा शुरू हुआ EcoJob में स्टार्टिंग, और दिसंबर के एंड में मेरे पास ये रियल सॉफ्टवेयर का ऑफर लेटर आया था। ओके, गॉट इट। अच्छा, वो कॉलेज से हो गया था बट ऑफर लेटर लेट आया, ऐसा? हाँ।
वही वही सीन था। मैं पूछा एक जॉब को डिस्कवर कैसे किया था? डिस्कवर मैं मतलब देख रहा था, मैंने जो पे आफ्टर प्लेसमेंट रहते हैं ना, कई सारे बच्चों का पे आफ्टर प्लेसमेंट में मैंने सुना था वैसे। तो उस वक्त जॉब भी नहीं लग रही थी, तो मैंने ऐसे यूट्यूब पे सर्च किया, तो कई सारे नाम आए कि जॉब, और हम्म, आई थिंक दो तीन कंपनी थे, जो नाम नहीं याद आ रहा है, प्रीप्लेस नाम की भी एक थी, और ऐसे कई सारे थे। तो एक जॉब का रिव्यू सबसे अच्छा लगा, तो इसलिए वो उसको got it. सर्च So, कर लिया। like, उस समय आप फ्रेशर थे, आपका जॉब लग चुकी थी, राइट? ऑफर हाँ लेटर नहीं आया था। सो हाँ आपने ये नहीं सोचा कि मैं जॉब ही लेता हूँ, एक कोर्स क्यों ज्वाइन करूँ? मतलब वो कोर्स ज्वाइन करने का क्यों दिमाग में आया आपके? हाँ, मतलब जो कंपनी में मैं प्लेस हुआ था ना कॉलेज से, वो भी मतलब हमारे कॉलेज के हिसाब से तो टॉप की कंपनी थी। मतलब पैकेज भले 3 LPA का था, आई थिंक 3 LPA था। तो कॉलेज की तो अच्छा ही था, लेकिन एक ही जॉब से मैंने सुना था कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी आ रही है, तो फिर अगर मैं ऑलरेडी चॉइस बैच का हूँ, तो मेरे हिसाब से मुझे इतना इशू नहीं आएगा, तो मैंने इसलिए कंटिन्यू करना सोचा। गॉट इट। फिर एक हाँ जॉब के साथ जर्नी कैसी रही? और क्या क्या पढ़ा? हाँ, मतलब एक जॉब के साथ जर्नी तो रियली ग्रेट ही थी। डीएसए में मैं थोड़ा वीक था, तो उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट मिला। और स्प्रिंग बोट तो जो उत्कर्ष भैया, उत्कर्ष थे, आई थिंक उत्कर्ष का कुछ नाम था उनका, उन्होंने अच्छा ही पढ़ाया हाँ, था। तुषार। हाँ, तुषार या कुणाल, मिंत्रा मुझे या नाम तो नहीं माइक्रोसॉफ्ट? आता। हाँ हाँ, माइक्रोसॉफ्ट में ही है वो तो। और कुणाल क्या नाम, कुणाल। कुणाल है क्या? हाँ सॉरी, उनका नाम नहीं पता। हम्म। हाँ, वो तो यस यस। उन्होंने अच्छे से पढ़ाया, तो फिर और कई सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए, तो फिर अब तो कोई हम्म। इशू नहीं आ रहा था। और ये गॉट मेरी इट फर्स्ट गॉट इट। कंपनी थी, मतलब जिसमें मैंने इंटरव्यू दिया था। और मतलब राजा अच्छा। सॉफ्टवेयर में भी ओ। दिया था। हाँ, राजा हाँ हाँ। सॉफ्टवेयर में सीन ऐसा हुआ, मैंने टेस्ट दी, तो उसके बाद मैं नेक्स्ट राउंड में जा ही नहीं सका। अरे टेस्ट में गॉट इट। फेल हो क्यों, चुका। ऐसा क्यों लगा कि वहां पे आगे नहीं बढ़े हो, यहाँ पे सिलेक्शन हो गया? नहीं, राजा सॉफ्टवेयर में मेरे टेस्ट में थोड़ा ऐसा सीन हो गया। 4 कोडिंग क्वेश्चन थे ना, और एक कोडिंग क्वेश्चन में मुझसे सेव और नेक्स्ट का बटन क्लिक हो गया, और उसमें ऐसा सीन है, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले गए, तो वो प्रीवियस वाला सेव हो जाता है, लॉक हो जा रहा है। तो इसलिए मुझे राजा सॉफ्टवेयर में नहीं हुआ। तो उसके बाद मैंने कैप्चर था, और कैप्चर मुझे बेस्ट लगी, तो उसमें मैंने कंटिन्यू। और इसमें मतलब बड़ी कॉन्फिडेंट की हो जाएगा इसमें? क्या लग रहा था कि शायद होगा, शायद कुछ? नहीं, बस फर्स्ट राउंड तो अच्छा गया था, लेकिन जो सीटीओ राउंड हुआ था ना, उसमें मुझे थोड़ा डाउट आ रहा था, इसलिए। और अच्छा। मतलब जाते जाते वक्त तो सर ने बोला ही था कि मतलब इंटरव्यू गोज गुड, लेकिन फिर भी डाउट तो रहता है ना, सीटीओ राउंड था आखिर में। मेक सेंस हाँ मेक सेंस। सो व्हाट डू यू थिंक कि मॉक्स ने आपको हेल्प किया इंटरव्यू राउंड्स में काफी? हाँ, यस यस। और मतलब एक ही जॉब का जो मॉक होते हैं ना, वो ऐसे इजी तो होते नहीं है। मतलब पहले मैंने सुना था कि हम्म। इजी होते हैं, लेकिन अब तो शायद हार्डनेस थोड़ी ज्यादा ही बढ़ा दी है। तो मतलब अच्छी बात है वो तो उसमें करेक्ट मुझे करेक्ट। कई मतलब सारे एक ड्रॉबैक्स बार पता आप की चलते हैं। तैयारी करोगे तब आप नीचे की चीजें प्रिपेयर कर पाओगे। हाँ हाँ, वही है। और मैं डीएसए में आई थिंक एक दो बार मैं फेल हो चुका था। उसके बाद नेक्स्ट में मतलब उधर है ना, स्कोर का सिस्टम है, मतलब 10 में से 9, 7 से ऊपर रहे तो आप करेक्ट नेक्स्ट के लिए जा सकते हो। तो मुझे पहले करेक्ट। 2 तो बहुत बुरे गए, उसके बाद मुझे 9+ मिल गए थे। तो और उसके बाद स्प्रिंग बूट का भी डिफिकल्टी रहता है, लेकिन अच्छा था। मतलब कई सारे हमारे हमारे जो प्रॉब्लम्स रहते हैं, वो पता चल जाता है। यस Got it. So when you started learning the modules, you were enrolled in DSA, right? So यस सर। क्या इम्प्रूवमेंट लगा कि क्या चीजें पहले नहीं आती थी? बिकॉज आप बीटेक हो, फ्रेशर हो, जॉब भी निकाली, तो थोड़ी बहुत स्किल्स तो आई अज्यूम की है थी, बट वो जो पहली कंपनी जो कैंपस से मिली थी, उसमें जो राउंड था, अब मेरे ख्याल से प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काफी डिफरेंस रहा होगा, राइट? व्हाट डिड हाँ यू थिंक, व्हाट आर स्किल्स डिड यू अचीव, और कैसे पढ़ाई तो करी उस वाली साइड को अचीव करने के लिए? हाँ, तो जब कॉलेज में कंपनी आ रही थी, तो मतलब बेसिक अरे अरे और स्ट्रिंग में काम हो जाता है। मतलब ऑलमोस्ट बेसिक एल्गोरिदम, बेसिक कार्डिनल एल्गोरिदम या मूरिस एल्गोरिदम हो गया, इनसे सबसे काम चल जाता है। लेकिन जब प्रोडक्ट बेस की आती है, तो ट्री ग्राफ की भी तैयारी करनी पड़ती है। तो और वो जो ट्री ग्राफ में की जॉब में, तो मतलब टॉप लेवल ही पढ़ाया हमको। तो उसका बहुत हेल्प मिला। और जो इंटरव्यू था, उसमें ग्राफ के भी क्वेश्चन पूछे गए थे। कई सारे बच्चों को, मतलब मेरे केस में तो नहीं पूछे गए, लेकिन अगर नहीं आता तो मेरा मतलब सिलेक्शन में प्रॉब्लम आ जाता है सर। लेकिन उसमें ग्राफ भी मेरा अच्छा खासा इम्प्रूव हो चुका है, वो पहले जो नहीं था। ये से कैसे पढ़ाई करते थे? लाइक यू वर ऑलरेडी वर्किंग, राइट? एंड साइड बाय साइड यू वर हाँ डूइंग कोर्स, हाँ। सो तो हाउ यूज्ड टू मैं प्रैक्टिस? हाँ, पहली बात तो ट्री और ग्राफ का, मैं बीटेक से कंप्यूटर से हूँ, तो ट्री ग्राफ का बेसिक नॉलेज तो मुझे है ही कॉलेज से। और सबसे ज्यादा मैं क्या करता था, मतलब जीडीबी कंपाइलर में जो इम्प्लीमेंटेशन था ना ट्री और ग्राफ का, अगर एक बार आप अच्छे से समझ लोगे, तो फिर इंसर्शन डिलीशन वो सब पता चल जाता है। और जो बीएफएस डीएफएस है ना, उनके एल्गोरिदम पर ही ज्यादातर जो स्टैंडर्ड प्रॉब्लम रहते हैं ग्राफ और ट्री के,
उस पर ही डिपेंडेंट रहते, तो इतना ज़्यादा इशू नहीं आता। Got it. So you were already working and then you were also doing the course, right? यस। So how you used to manage the time? कैसे पढ़ाई करते थे उस वाली साइड पे? तो मैं सुबह आई थिंक हाँ 10 से 10:30 बजे ना कंपनी में जाता था और 8 बजे आता था। तो मतलब 10 से 1-2 या फिर 12 बजे तक टाइम मिल जाता था। और हम ऐसे बैचलर्स है ना, तो 1-2 बजे तक तो जागे रहने की आदत है। मोटिवेशन क्या था? मतलब जॉब थी हाथ में, तो मोटिवेशन क्या था कि यार एक होता है ना कि जो ऑलरेडी जॉब है तो स्टूडेंट्स आर चिल की ठीक है, देख लेंगे 2-3 साल बाद स्विच ही मार लेंगे, मतलब क्यों पढ़ाई करनी है, वो माइंडसेट रहता है, राइट? आपका क्या मोटिवेशन था कि भाई इतना पढ़ना साइड में जॉब में? हाँ, मेरे केस में ना इशू में जिस कंपनी में काम कर रहा था ना, उधर मुझे टेक स्टैक का थोड़ा इशू लग रहा था, पहली बात तो ये। और मतलब वो जो प्रोडक्ट कैप्चर, आई हैव सर्च अबाउट कैप्चर 6, तो कैप्चर 6 मतलब ग्रेट कंपनी है। मैंने उसके बारे में मतलब गूगल पे सर्च किया तो रेटिंग सब बढ़िया आई थी। और स्टार्टिंग अगर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी से हो तो बहुत अच्छी बात है वैसे तो, और पैकेज भी सबसे ज़्यादा है, तो फिर कोई इशू नहीं। चलो ये तो हो गया वो वाला मोटिवेशन, बट हाँ। वही बात है ना, जैसे व्हाट आई एम ट्राइंग टू गेट द आंसर ऑफ इज कि हाँ। जॉब है, फ्रेशर है, पहली जॉब है, पैसा भी आ रहा है, सैलरी आ रही होगी, राइट? तो वो व्हाट वाज द मोटिवेशन ऑन दैट साइड कि मैं जॉब से आके पढ़ूं, 6-7 महीने लगाऊं, और फिर जब ये भी होता है कि पता नहीं मार्केट खराब है, जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी, वो क्या मोटिवेशन था कि क्यों पढ़ना है, क्यों इतनी मेहनत करनी है? कि एज अ फ्रेशर मैं इतने सारे बच्चों से बात करिए, आई हैव सीन कि वंस दे गेट द जॉब फ्रॉम द कॉलेज कैसी भी, दे आर चिल, कि दे आर लाइक कि अब हम लोग स्विच ही करेंगे, धीरे धीरे करके पहुंच जाएंगे, पढ़ाई तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। व्हाट वाज योर पॉइंट ऑन दैट साइड? तो मेरे केस में ऐसा था, मतलब जब मैं बेसिकली 24 बैच का हूँ, तो 23 बैच में और 22 बैच में जो प्लेसमेंट हुई थी वो टॉप नॉच हुई थी। तो हमारे कॉलेज से भी कई सारे बच्चों का 7, 8, 9 ऐसे लग गए थे। तो ऐसा जेलसी लगती है ना, मतलब सीनियर्स इतने फोड़ रहे और हमको 3 LPA का लगा, तो इसलिए हम प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा ऐसा। हाँ। गॉट इट। ये सुनना चाह रहा था मैं, ये क्या मोटिवेशन थी? नाइस। सो आई थिंक कितने महीने आपने कोर्स किया? 8 to 9 मंथ हो चुके हैं। दिसंबर में सारे मॉड्यूल्स कंप्लीट कर लिए आपने? हाँ, सारे मॉड्यूल्स कैप्स्टोन तक सब हो गया है। ओके, एंड दिस वाज योर टेक्निकली फर्स्ट कंपनी जहां पे आपने इंटरव्यू दिया? यस सर, टेक्निकली फर्स्ट। पहली कंपनी निकाल ली, नाइस। अमेजिंग। सो लॉट्स ऑफ लक फ्रॉम द एक्यो जॉब टीम, राइट? एंड वी विश यू लक कि मतलब पहली कंपनी निकालते हो आप तो लाइक इट्स वेरी मच कॉन्फिडेंट कि स्किल्स के बेसिस पे ही निकली, लक के बेसिस पे नहीं निकली, राइट? हाँ, वो मतलब तो मेहनत है, मतलब एंड आई कैन सी कि लाइक ऑलरेडी वर्किंग समवेयर, आने के बाद पढ़ाई करना, मोटिवेशन होना, वो एक कंसिस्टेंसी है, मोटिवेशन, इंटरनल मोटिवेशन है, तभी आप कर पाओगे, नहीं तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है जॉब के साथ करना, राइट? बहुत से बच्चे मैंने देखे हैं, दे लीव द जॉब, दैट आल्सो नीड अ लॉट ऑफ करेज टू लीव द जॉब एंड देन स्टार्ट लर्निंग, बट वो रियलाइज करना कि आपको एक अपना लेवल ऊपर बढ़ना है और उस लेवल पे उस टाइप के जॉब को लेने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट जाएगा, राइट? चाहे आपको जॉब के साथ पढ़ाई करनी पड़े, चाहे कॉलेज के साथ पढ़ाई करनी पड़े, और चाहे जॉब छोड़ के पढ़ाई करनी पड़े, बट वो जब तक अंदर मोटिवेशन नहीं होगा, करना सबको है, देखो सबको 7, 8, 9, 10 लाख की जॉब लेनी है, बट मेहनत कौन करता है उसका निकलता है। और देयर आर ऑलरेडी मेनी स्टूडेंट्स ऑफ एक्यो जॉब हु आर वर्किंग इन कैप्चर, राइट? तो आपको वो लोग मिलेंगे वहाँ पे, राइट? इफ यू नीड एनी हेल्प यू कैन कनेक्ट विद द प्लेसमेंट टीम, यू कैन कनेक्ट विद मी। डू यू वांट टू शेयर एनी योर फीडबैक और योर words to our instructors, founders, or Accio Job team, placement team, anything? So I will say thank you to the whole Accio Job team for helping me throughout my journey and for getting placed me in one of the product based company. So always be thankful of them.